including teachers. Okay, Okay, now now come comes today's today's lecture. lecture. I have I have yesterday given yesterday some given some main main points points about the about the discussion of discussion of the sociological sociological jurisprudence. jurisprudence. Today it is Today, not it is not possible to possible to discuss all discuss the all the 40 three three points as points I have as I cited have yesterday. cited yesterday, But but some of the some of points the are points are very very useful for the useful for the LLM LLM purpose. purpose. Therefore, in Therefore, the in the not the way not the as way it is as it is at teaching at LLB level, LLB level, I will I will teach. teach, But but I will I will just just correlate the correlate the things things which are which are very much very much useful useful or or apt to apt apply to apply in legal in system. legal system. Thus, these are the Thus, points these are the which points are which required to are be required discussed to be here. discussed here. Today, Today, under the under sociological the jurisprudence, sociological jurisprudence, number one point, number one point, as I have yesterday as I have given the idea yesterday about given the the idea about the scientific system or scientific empirical system or study of empirical study of under the jurisprudence sociology. under the sociology. Second age, Second age, the the Darwin's concept of Darwin's concept evolution of of society evolution of society and the application and the application of this theory of this theory in sociological in jurisprudence. sociological jurisprudence. Another point is Another point psychological is psychological theories theories and relationship with sociological jurisprudence. sociological jurisprudence. And And then, then, of course, the unification the of unification of the sociology, the sociology, or you can say or you the can say unification the of law and unification of society. law and society. And And beside these, beside these, one of the one of the facet facet which requires requires to to be be discussed discussed here, struggle here and the law is struggle and law under the under the sociological approach sociological approach of the jurisprudence. of the jurisprudence. Then Then another another which I will discuss today about the control to social society by law and other factors. and other factors. And of course, And of course, the legal philosophy the legal philosophy under under the sociological the jurisprudence. sociological jurisprudence. Then some of the Then some components of the components for practical for approach practical of approach of Pound's theory, division of division of various kinds of and purpose interest of- and purpose of law under the common name under of the common name of engineering the system of- engineering system of lawmaking process. engineering system Engineering system of lawmaking process. come into the first Then come point, into the first point, and you will and you all will these correlate points all these points with the study of with the study of sociological the jurisprudence, sociological jurisprudence, with the system which which is available in the textbooks or on or on website. then Then please keep in your mind keep there in are your some mind there are factors some that very factors which are relevant in very society relevant in society for making the law for making the law in the context of in the context of the sociology. समाजशास्त्र के समाजशास्त्र के संदर्भ संदर्भ में बनाए विध जाने को और बनाए जाने और विध की प्रक्रिया और सृजन के लिए और सृजन के लिए कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस की विवेचना के अंतर्गत। वो फैक्टर्स हैं नंबर 1 इज सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा। सेकंड इज द सोशल चेंजेज, समाज में परिवर्तन। थर्ड इज द सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां। एंड देन सोशल बिहेवियर। एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड मेकिंग ऑफ लॉ
is a subject matter is of a the subject matter sociological- of the sociological jurisprudence. इसलिए जब कभी सामाजिक विधि शास्त्र या विधि शास्त्र का स्वरूप समाज में आकलन करने के लिए विचार किया जाता है तो सर्वप्रथम ये चार तथ्य मस्तिष्क में आते हैं कि सोसाइटी का ढांचा क्या है, social structure, and as I have said the four factors. So what kind of society is there? Whether they are the habitually to follow the advanced principles of law in society, or they have the habit to go against the advanced system of law. सामाजिक ढांचे के अंतर्गत समाज के ऐसे सृजनात्मक स्वरूप को देखने के लिए और उस पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या वह विधि के विकसित सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व है अथवा सामाजिक वातावरण से ओतप्रोत होते हुए सभ्यता के सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है. Therefore, the first factor is a scientific method which is called under the empirical study of the law. अन्वेषणात्मक खोज विधि की उसके अंतर्गत ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है जब विधि शास्त्री सिद्धांत समाज में अपना स्थान बना पाएंगे अथवा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, as you can see, the concept of Ehrich based on the living law and the purpose of law. He said that law should have the life. I am citing this example under the first factor. By correlating the ideology and the observation and the writings of Ehrich. The relationship of this ideology, purpose of law. See, in Indian situation, in a portion of criminal law for the protection of female, in the year 1860, there was a simple provision that if any person will commit any offense under 376 or 377, he shall be liable for the punishment. Simple provision was there. And the exception of this basic provisions of the law as an offense were more than the general provision. सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. लेकिन समाज में घटनाएं घटी. एहरिच के सिद्धांत को लागू करिए और 1987 में मथुरा रेप केस आया तो ये विचार किया जाने लगा कि विधि में संरक्षा के सुगम और सफल उपबंध नहीं है क्योंकि अपराधी छूट जाता है.
परिवर्तन आया, ABCD जोड़ा गया. ABCD जोड़ा गया. And after that, a serious case came in the year 2013. Social structure. And a lot of amendment has made a serious kind of a serious kind of offense made by the competent made by the competent legislature by application of social structure as a sociological jurisprudence. Finally, the burden of proof which was shifted in the year 1987 by amendment under the law of evidence has been strengthened, and now today it is very, very serious offense, very complicated offense, even if there is a punishment for capital punishment. The meaning is thereby that social structure which was existing in the year 1860, which is existing in the society at present, advanced system of law for protection of for the protection of all, including the person who is basically deprived of her rights. And due to the increasing of offenses in society, this is called the empirical study, law made in the society. And the social changes, second factor, which has accepted by all the thinkers and jurists under the sociological approach. And law cannot live in the society in vacuum. समाज में कोई भी विधि शून्य में अपना स्थान नहीं बना सकती है. If society is going to be changed, either for betterment or for the making of strong criminal laws, the changes are there. The sociological jurisprudence including Auguste Comte, Montesquieu, supports this social change, and they are in favor of. Their ideology supports to change the law immediately according to changing of the social factors. And these social factors, if we will see in the Indian approach, in the year 1954, a special kind of law has enacted, which is called the Special Marriage Act 54, not 55. And that was the demand of the society to remove the discrimination from the Indian society because of the effect of customs and the approach of social evils. And another debate was here in India for protecting the various kinds of interest as hearing and rescue power. And these interests are individual, social, and the public. If we will see the categories of the interest under the individual interest, and these categories are, even if the family and marriage,
as per the writings of Pond. Then correlate this ideology of the Pond with the Indian situation of 1954 and pre-system of 1954 to remove all the stigmas from the society. But one thing which sociological jurisprudence emphasized or their thoughts reflects that Even if the in society there is a law, but maximum peoples are not ready to that law. And how many persons are going through the application of 1954 Act? These are in exception, less than 1% in Indian society. It means the changing law in society. One book has written, one of the Indian writer on it, Society and Change in Law. B.S. Sinha's book is available there. He was the professor a long back. That was his thesis. And perhaps there should be one topic under, maybe in interpretation or some LLM. One chapter there may be the society and law. And that chapter have the relationship. That chapter have deep roots in the sociological jurisprudence. So my point is that the factor number 2 and factor number 1, social structure and social changes. Of course, for providing the benefits and facilities, there is a welfare legislation which is called law. But another side, if society is not ready to accept it, the purpose of the law is minimum fraction. It is a quotation given by Pond. And maximum purpose of the society should be protected by the law. And there should be the minimum friction, contradictions, both the word vision written by the Pond, by the law. 54 law is not being accepted as such by the maximum people, regardless of caste, race, place of birth, region, language, sex, so on. वो विभेदकारी नहीं था, वो सबके लिए था. But Pond said that the individual interest is there, and under the individual interest, there is a interest of property, interest of family, interest of marriage, interest of the other belongs. The purpose of the law is to balance the interest in the society if there is a conflict of ideas, and conflict of the system, conflict of the existing social traditions, you can say. Though the tradition is the subject matter of the historical school as a usage and custom.
But if you will see the beginning points written by various writers about the separation and unification of this sociological approach, पता नहीं कितना एलएलएम के बच्चे इसको समझ रहे हैं, because I have picked the point, then I am correlating it, these points, which is expressed by the various jurists about the sociological school. समाजशास्त्री विधिशास्त्र के संबंध में विभिन्न प्रकार के विधिशास्त्रियों के द्वारा अभिव्यक्त किए गए उद्गार और विचार को मैं उनके शब्दों को पकड़ते हुए व्यावहारिक रूप में लागू करने का प्रयास कर रहा हूं. Therefore, the point is that what kind of the changes are going on in the society. That is the purpose of law under the jurisprudential system of society. Then, of course, if the evils are increasing and the social behavior for coexisting is decreasing, यदि समाज में सामाजिक बुराइयां बढ़ने लगती हैं, सामाजिक सौहार्द कम होने लगता है, ऐसी परिस्थितियों में सोसाइटी के देयर इज ए कंसेप्ट दैट इन सोसाइटी, रंजन मैं भी बात करूंगा आपसे, इन द सोसाइटी द मैटर ऑफ द मेकिंग द लॉ टू रिमूव द इविल्स. ऐसा नहीं है जो इविल्स बहुत पहले था वो आज खत्म हो गया. जितनी बुराइयां समाज में थी संख्या में कम हो सकती हैं, लेकिन वो बुराइयां समाज में के अस्तित्व में रहती हैं. यदि नहीं रहें तो फिर लॉ ही दिखाई नहीं देगा. जब कभी वो बुराइयां दिखाई देती हैं तो लॉ अपने फंक्शन को शुरू कर देता है. तो सामाजिक बुराइयां एंड वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इविल्स, कि ये है क्या, इविल किसे कहते हैं आप. इन ए टाइम बिफोर द 1972, याद करिए, बिफोर द अर्थ कॉन्फ्रेंस इन रियो दी जनरियो, वैश्विक स्तर पर जंगली जानवरों को मारना सोशल इविल्स नहीं था वैश्विक स्तर पर. नाउ आफ्टर द 1972, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशियोलॉजिकल jurisprudence फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. भारत के संविधान में भी अपना स्थान बनाया उसने. आपने देखा होगा 51A में, इसी में से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कई जगह, टू प्रोटेक्ट दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स. 51A, G and F, if you will see. The point is that which was not evil according to the sociological jurisprudence earlier, even if the Comte, Max Weber, that became automatically the social evil. अचानक सामाजिक बुराई हो गई है. क्योंकि
एडवांस आइडियोलॉजी आने लगी, पर्यावरण दूषित होने लगा, एंड इकोसिस्टम बिगड़ने लगा। कोई चीज समाज में बहुत ज्यादा होने लगी और कुछ जानवरों की संख्या घटने लगी, क्योंकि इकोसिस्टम मीन्स साइकिल, एक जानवर दूसरे जानवर को स्वयं खाता है। तो जो बड़ा जानवर था, जिनका मांस से ही आहार होता था, उनको मार दिया गया, तो अन्य जानवर बचने लगे, तो हाहाकार होने लगा। The point is that the ideology of sociological jurisprudence came into light, not in existence. Existence में तो पहले से ही था। 18वीं शताब्दी के अंत से ये बात करने लग गए थे। कॉम्टे को देखोगे तो वो तो कॉम्टे का जन्म ही 1789 का है और 1857 तक रहा है। तो 18वीं शताब्दी की लास्ट और 19वीं शताब्दी की मध्य तक पहला व्यक्ति था। चीज एग्जिस्टेंस में थी, कह रहे थे वो सोशल इविल पे लॉ आधारित होगा। सोशल इविल क्या है? जो कल तक नहीं था वो आज हो गया है। चीज वही है, समाज वही है, लोगों के विचार वही हैं, लेकिन क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन आने लगा, परिस्थिति बिगड़ने लगी, लोग सोचने लगे, बीमारियों का कारण साइंटिफिक मेथड से ढूंढा जाने लगा। क्या ये ऐसा नहीं था कि बीमारियां पहले नहीं थी? और व्यक्ति की, इफ यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल jurisprudence for the welfare of the people or for protecting the life, लिबर्टी को एक दूसरी साइड में भी ले जाते हैं तो आप, for the protection of life the human being by scientific approach, कोई नहीं मानता। and see not only this evil, समाज में मेल एंड फीमेल का रेशियो बिगड़ने लगा, सोशल इविल आया। Then immediately there was a need to enact one law, Prevention of Prenatal Diagnosis Test Act. And continuously the amendment has been made on it. And during the war, it may be Second World War, globally, the male was in the battle of the war, तो फीमेल की संख्या ज्यादा होने लगी। Then the another concept of law on the basis of the sociological jurisprudence, which has supported by airing even if the do it for the commercial purpose, said that this should be the relationship of the social animals with each other. Automatically, today if you will see, after the development of the technology, a new era emerged, although that era is very old one convention, very old, in the end of the 19th century. New aspect emerged that is called the intellectual rights on the property. The point is that social evils on the basis of sociological jurisprudence, and the purpose of law to remove the social evils. Evil depends on the sociology, the approach of the society, or in another term you can say the approach of the sociology system. बुराई तो समाज की दृष्टि पर है,
In one community, the marriages within the relationship are permissible. Another community, it is not permissible. Why? Because the custom and system of the society. And in one place, it may be the evil. In another place, it may not be the evil. In under the economic offenses in the China is in top for the purpose of rigorous punishment. But in other countries, it is being taken lightly. Therefore, all these things depends also the fourth factor, which is called a social behavior. Behavior of the human being always depends on the social system. And if the change will suddenly and automatically, the legal change will be in society, no will accept that change. Sudden change. Take the aspect of, as I have said, the globally to protect the environment. The indigenous peoples who were totally dependent on the forests, living in the forest area, which is called in India scheduled tribes, they had not accepted the law made by the state. Therefore, new act enacted in 2006 on the basis of the sociological jurisprudence, where the rights has been given to the socially backward, that is the tribal people who are living in the forest area. And even if in codified law you can see, not in India, but in other countries also, in individual interest, not in social interest, under the Bond's theory, that this law will not apply as a proviso, you can see. Even if you can see section 5(7) of the Hindu law and some other places, 1955, relating to the marriage. The system shall not have applicable on legal system, according to these provisions, on the persons where there is another kind of custom. Sociological approach of the law keeps in mind the society, not to the state. And the thinking of these jurists, including the Hegel, even if the various kinds of the behavior, self-interest behavior, social behavior, and the cooperating behavior, and working hardly behavior of the human being is also the part of the sociological jurisprudence for application and making of law, and even if the accepting the law. Then, as I have said, that there is the concept of the various scientific methods, which is called Darwin's theory, and which is called the impact and against the movement in laissez-faire system,
and which is called the movement against the system which is totally based on the superpower. सर्वोच्च शक्ति पर आधारित विचारों के खिलाफ क्रांति, विचारों के विरोध में क्रांति सामाजिक विधि शास्त्रियों की विषय वस्तु रही है. And biological factor and evolution of the biological, समाज कैसे बना, कैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ. And today's student of the 21st century are better than the 18th and 19th century because of the facilities and because of चाय है the system of the society. Then this metaphysical reaction समझने का प्रयास कीजिए. सर्वशक्तिमान शक्तियां जिनको आप प्राकृतिक विधि के अंतर्गत देख रहे हैं, इनको समाजशास्त्री विधि शास्त्री स्वीकार नहीं करते. इनको अंगीकार अधिरचित विधि शास्त्री भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अधिरचित विधि शास्त्रियों और समाजशास्त्री विधि शास्त्रियों में अंतर है. अधिरचित के विधिशास्त्री राज्य को सर्वोच्च मान रहे थे, लेकिन समाजशास्त्री विधिशास्त्री समाज को सर्वोच्च मान रहे हैं. इसलिए डेवलपमेंट स्टेज स्टार्टेड इन सोसाइटी कहां से? प्रिग्मेटिक सोसाइटी से, जहां लोग स्वीकार कर लेते थे और उसको ही विकास मानते थे. लेकिन क्रमशः और स्नेह स्नेह सामाजिक विकास ने परिवर्तन की दौड़ में अपना स्थान बनाने की कोशिश की. इसलिए ये माना जाने लगा कि जो सोसाइटी स्वीकार करती है, और सोसाइटी मीन्स समाज के अधिकतर लोग, और जिससे समाज का पर्पज सिद्ध होता हो, लक्ष्य सिद्ध होता हो. लक्ष्य का अर्थ बेहतरीन की तरफ है. इसलिए सामाजिक हित बताए पॉन्ड ने, और उन सामाजिक हितों को इफ यू विल सी दैट इज ऑल्सो एनालाइज्ड बाय डायस ऑल्सो. वो सामाजिक हित क्या है जो पॉन्ड बताता है? तो जो समाज के लिए हितकारी हो, वो 6 प्रकार के वो उल्लेख करता है. दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द डायस इन हिज बुक. उनको देखिए और विधिशास्त्री विचारकों के विचारों को इस इंपेरिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ पर लागू करिए. पहला है सामाजिक सुरक्षा जरूरी है. अब लागू करिए इसको. सामाजिक सुरक्षा कहां है? इफ यू विल सी every law, even if in criminal law or in constitutional law, there is a word that social security. अब आर्टिकल 19 को देखिए. सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा अलग है. डीपीएससी लिख रहा है एक बच्चा, वो सामाजिक हित है, वो सामाजिक कल्याण है. Social security is not a social justice. Social justice is another concept. सामाजिक सुरक्षा
का सामाजिक हित है. इफ यू विल सी द आर्टिकल 19, एक्सेप्शंस, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, समाज की सुरक्षा. This is the first kind of the interest as a social interest which the Rasco Pound has discussed in his theory about in a book of functions of law or functional law में उसने ये विचार किया. सेकंड देखिए, सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा में हित. सामाजिक हित पहले सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी. सेकंड पॉइंट कह रहा है पॉन्ड कि सामाजिक संस्थाएं, व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज दैट these institutions where the purpose and function of these institutions for this society. What are these institutions? Like schools, colleges, universities, social institutions. And like the public utility institutions. कौन है पब्लिक यूटिलिटी की? जल, बिजली और राशन की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं. और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं. कह रहा है इनको सर्वोच्च स्थान देता है लॉ. ये कह रहा है ये सामाजिक सुरक्षा में सर्वोच्च स्थान देता है. तो सिटीजन्स के जो राइट टू स्पीक का है, राइट टू कैरी द बिजनेस है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू प्रोसेसन है, व्हाटएवर इज देयर, these rights in a civilized society by the constitution given to the citizens in every country. तो उससे पहले सामाजिक सुरक्षा है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को आधार बनाकर. ये पॉन्ड ने तभी कह दिया था. In 1919 he has expressed his views. तो उस समय उसको आभास हो रहा था, क्योंकि देख रहा था विश्व की सामाजिक परिस्थितियों को. वो आज भी स्टिल आफ्टर द 100 years this theory have the proper application even if today कोई चेंज नहीं है. देन तीसरा देखिए सामाजिक हित की बात को क्या करता है वो. एंड द थर्ड पॉइंट विच he said about the सामान्य नैतिकता, सामाजिक नैतिकता नहीं, जनरल मॉरलिटी. और सामान्य नैतिकता में सामाजिक हित है. सामान्य नैतिकता, सामान्य नैतिकता सामाजिक नैतिकता नहीं है. और सामान्य नैतिकता कहती है नॉट टू टेल ए लाई, जबरदस्ती झूठ मत बोलिए, हैबिचुअल मत बनिए झूठ बोलने के. सामाजिक नैतिकता कहती है अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को पीड़ा मत पहुंचाइए, मानसिक, शारीरिक और किसी प्रकार की. सामान्य नैतिकता है. सामान्य नैतिकता कहती है कि जिसके संसर्ग में आप आते हैं उसके साथ मानवता का व्यवहार करिए. और मानवता के व्यवहार में फिर बहुत सारी चीजें आती हैं. मानवता का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो मानव है. Therefore, the Pound said that सामान्य नैतिकता, इसमें सामाजिक हित है, क्योंकि समाज में हितों का टकराव नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्य से रहेगा. तो सामंजस्य से रहने के लिए
संसाधनों के रूप में विधि को प्रतिपादित करना और लागू करना ही समाजशास्त्री विचारकों का लक्ष्य है। कहता है इन हितों को देखेंगे। नेक्स्ट इफ यू विल सी द इंटरेस्ट नंबर 4 एज ए सोशल इंटरेस्ट, ही सेड दैट द सामाजिक संसाधनों के संरक्षण में सामाजिक हित है। अब सामाजिक संसाधन क्या है कि पानी का नल गांव में आया, एक व्यक्ति गया, उसने कहा मुझे तो पानी मिलना है नहीं, ये जिनके पास पैसा है वही कनेक्शन लेंगे, जाके वो नल को तोड़ा है। ये सामाजिक हित है क्या? सामाजिक संसाधनों को विच्छिन्न करना, तो उसके लिए कानून बन जाएगा फिर, और वो कानून कार्रवाई करने लगेगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति ही फिर दूसरे शब्दों में सरकारी संपत्ति कहलाती है। प्रोसेशन में आग लगा देना, तोड़फोड़ कर देना, तो ऐसे हितों को संरक्षित करना विधि का कार्य है। क्योंकि यदि कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या किसमें कि सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो समाज तो पहले है, समाज में तो बहुत सारे लोग आते हैं। समाज की संरक्षा तो आगामी पीढ़ी के लिए भी है जो लाभदायक होती है, तो उसको विधि संरक्षा पहले देगा, इंडिविजुअल को नहीं। टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लैंड एक्वायरिंग, acquisition of land, which was long back 1897 in India, but here 2013 land acquisition and rehabilitation after the movement in West Bengal। तो इसमें आप देखते हैं, और वहां आर्टिकल 31 में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के सामाजिक संस्थाओं में, तो कोई अगर लोक हित की संस्था का निर्माण करना है, हाईवे जा रहा है, प्रॉपर्टी टूट जाएगी, मकान भी टूट जाएंगे, क्योंकि कानून है। और ये कानून पौंड की थ्योरी के पे आधारित है। उसको पहले देखना है। इवन इफ द कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि सामाजिक हित है उसमें। एंड बिकॉज देयर इज ए सिविलाइज्ड सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, दैट्स व्हाई एज आई हैव सेड इन 1897 देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। ऐसा वहां नहीं था, वहां केवल एक्विजिशन था, अधिग्रहण था, और सरकारी इच्छा और उसके फिक्स रेट के आधार पर पैसा मिल जाता था। बट टुडे द चेंजिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज एक आपने देखा, तो विधि ने रिहेबिलिटेशन को भी जोड़ दिया। संपत्ति लीजिए, लेकिन जो उस संपत्ति से संसाधन विहीन हो गए हैं उनको भी कहीं कहीं पर आश्रय दीजिए। चेंज आया लॉ में, तो लॉ बदल गया, मांग बदली, व्यवहार बदला, परिवर्तन आया, सभ्यता के सिद्धांत आए, तो पौंड का विचार जिंदा ही है अभी भी। तो कह रहा है सामाजिक हित है, सामाजिक संस्थाओं को संरक्षित रखने में है, वो लॉ रखेगा। बिकॉज देयर इज ए फोर्स इन लॉ, वही काम करेगा। व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आप नहीं करिए दूसरे से, न वो मानने वाला है, क्योंकि यदि कहेगा तो कानून को अपने हाथ में ले रहा है। देयरफॉर वन ऑफ द फेमस फिजिशियन, ये अगस्त काम से भी मैथमेटिशियन था, लीगल एक्सपर्ट नहीं था। तो डोंट टेक द लॉ इन हिज ओन हैंड और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दो उक्तियां आप सुनते होंगे हमेशा, विधि अपना कानून करेगी, अपने हाथ में विधि को मत लीजिए।
It is a quotation of the Thomas, who was the physician, medical doctor था वो। उसने कहा कानून अपना काम करेगा। तो मीनिंग इज देयर बाय दैट टू प्रोटेक्ट दी सोशल इंटरेस्ट, लॉ शैल बी मेड एंड इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो अपना काम करेगा, लेकिन विचारक कह रहे हैं कि इन बातों को ध्यान में रखिए विधि के लिए, नहीं तो उस विधि को कोई नहीं मानेगा, पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट व्हिच ही सेड, point number 5 about the social interest, he said that सामान्य प्रगति में सामाजिक हित है। कितना अच्छी बात कह रहे हैं वो। सामान्य, इन जनरल, आप देखते हैं कोई भी सरकार लोकतंत्र में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लंबे समय तक शासन करना चाहती है तो ऐसी योजनाओं को लाती है जिनके द्वारा ज्यादातर लोगों को खुशी होने लगती है, उसके लिए विधि बन जाती है। अब यू कैन सी, एनालाइज इट। कितना ही लोग कहें कि सब बेकार हो रहा है, लेकिन सामाजिक हित को संरक्षित करने वाली नीति चिरस्थायी रूप से लाभ देती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उससे खुश होता है। ये पॉन्ड तब कह रहा है, बताइए, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी कह रहा है इसको करो। देन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द पॉन्ड, द पॉइंट नंबर 6 कहता है व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित। अब ये इंटरेस्टिंग बात है। वन साइड ही सेड दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित, सोशल इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल्स लाइफ। कैसे? मैंने आपको कहा, हालांकि वो नैतिकता वाली बात है, कि खाने से पहले देखो कि मेरा पड़ोसी तो भूखा नहीं सो रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन आई विल कोट हियर, कि लोगों में विश्वास पैदा करना। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चीफ जस्टिस को। लिखा कि इस युद्ध के समय आप न्याय देना सुनिश्चित करें। चीफ जस्टिस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन को पुनः पत्र लिखा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस समय तो युद्ध की स्थिति है कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने फिर उत्तर दिया, व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात आ रही है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में ही सामाजिक इंटरेस्ट है। उत्तर दिया कि यदि न्यायालय न्याय देना सुनिश्चित करेंगे तो लोग देश को और सामाजिक हित को अपना समझेंगे और विश्वास करते हुए भूखे रहकर भी लड़ाई लड़ेंगे नाजी सिस्टम के विरुद्ध। अर्थात इंडिविजुअल है न्याय की गुहार लगाने वाला न्यायालय में, उसको अगर न्याय मिल रहा है तो लोगों में चर्चा होने लगती है कि अन्यायी को सजा मिल गई है, लोगों में विश्वास बढ़ने लगता है। तो व्यक्तिगत हित में ही सामाजिक हित है। सामाजिक शांति के लिए सही अर्थों में, सच्चाई के आधार पर और व्यक्तियों की भावनाओं को समझते हुए
जस्टिस नॉट ओनली बी डन मैनिफेस्टली सीम्स टू बी डन के कंसेप्ट को लागू करना चाहिए। वास्तव में निर्णय में न्याय है। तो ये पौंड की सामाजिक हित की बात करता है और वो है इसको साइंटिफिक मेथड से विधि का ये कार्य है कह रहा है। ये चिरस्थायी विधि होगी और ऐसी परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग सदैव सकारात्मक रूप से किया जाएगा। तो देयरफॉर द अगस्ट काम्टेज थ्योरी एज एडप्टेड, उसको संशोधित करके, जो थ्योरी मिडिल 19th में था, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जब वो अपने पोस्टुलेट्स पर लिख रहा था, अभिधारणाओं पर, पौंड सभ्य समाज में कैसे लोगों को विधि का अनुपालन करते हुए विधि के लिए अपनी अपेक्षाएं सुनिश्चित करना चाहिए। तो वो सामाजिक शांति चाह रहा था, सर्वहिताय की बात कर रहा था, इसलिए कह रहा था व्यक्तिगत हित में सामाजिक हित है। कोई बात नहीं, मेरा खेत चले गया तो सड़क बन जाएगी, लोगों को फायदा होगा, सामाजिक हित है उसमें। विद्यालय बन जाएगा, चिकित्सालय बन जाएगा, लोगों का बहुतायत में उपचार होगा, दुखी को राहत मिलेगी। ये साइंटिफिक अप्रोच अगस्ट काम्टे की भी थी, एहरिंग की भी थी, और ये फाइनली दैट वाज द अप्रोच ऑफ द रेस्को पाउंड आल्सो। Then the point relating apart from this scientific approach, you can also see some another method of the sociological approach which are for giving the justice to the society in a manner so that every person get the benefit from the law. कई बार जब हम पढ़ते थे तो विधि शास्त्र की विचारधारा में साधारण प्रश्न नहीं आता था। जब 1 या 2 LLM में पास हुआ करते थे 20, 25, 30 में से किसी भी यूनिवर्सिटी में, इवन इलाहाबाद में भी 8 साल तक एग्जाम ही नहीं हो रहे थे, तो ये आता था कि रेस्को पाउंड के विधि के लक्ष्य कम से कम लोगों के असंतोष और अधिकतर लोगों के हित को संरक्षित करने के सिद्धांत को विकसित और परिपक्व लोकतंत्र के विधि पर लागू करते हुए उल्लेख करें। और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सिविल सर्विसेज में भी, और ऐसा विद्यार्थी थे, हमें याद है, हमसे पहले बैच में, वो IAS क्वालिफाई कर गया, LLM फेल हो गया। The text which is written in the books, in the same way it cannot be written by the student, as I have delivered today's lecture, to apply the various thoughts which relate to the example of the law. If a person is correlating the things, it means, इसका अर्थ है कि बहुत अध्ययन अच्छा कर रखा है तो वो सारी चीजों को जानता है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को भी जानता है और इनके विचारों को भी जानता है, उनके विचारों को एक एक करके लगाता जाएगा। जैसे डॉक्टर देखता है कि पेन कहाँ है, मेडिकल साइंस में उसने पढ़ रखा है कि इस किस्म का पेन होता है तो उसको ये कहते हैं,
फिर उसके टेस्ट पापा कराता है। किसको वो है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। किसको मम्मी और फिर हाँ? कभी कभी गलत इलाज कर देता है। वो विधि शास्त्री जिसने गलत दिशा के लिए विधि के सिद्धांतों को उपयोगी बताया, वह अपने विचारों को सार्थक सिद्ध नहीं कर पाता है, मेडिकल डॉक्टर की तरह असफल होने लगता है, लोग याद नहीं करते। तो दस द फंक्शनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ द रेस्को करके रख दे रहे हैं इसलिए मैंने बोला उसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ किताबों ने लिखा है साहब, एक जैसे इंजीनियर मकान बनाने के लिए रोड़ी, सीट, ईंट, सीमेंट इनका मेजरमेंट करता है, फिर एक कंस्ट्रक्शन करता है। इसका क्या अर्थ है? विच इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग। व्हाट इज द इंजीनियरिंग इन सोसाइटी? एज आई हैव गिवन यू द 4 फैक्टर्स, जिसमें पहला देखा आपने सोशल स्ट्रक्चर देखा, सोशल चेंज देखे दूसरे, तीसरा आपने देखा सोशल इविल्स देखा, और चौथा आपने देखा सोशल बिहेवियर देखा। तो इसका मतलब है कि इन दिस सब्जेक्ट मैटर with the 4 factors, there is a engineering for creating the law, for application of law, and for the system of law. अब विशाल क्वेश्चन कर रहा है कि सर इवोल्यूशन बताइए, सामाजिक इवोल्यूशन में डार्विन को आप पढ़ें। कहता है सोसाइटी किस प्रकार की थी? मनुष्य का जो आज का शरीर है ये बायोलॉजिकल फैक्टर के आधार पर सेम नहीं था, और ये भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा, तो विधि भी ऐसी नहीं रहेगी। ये इवोल्यूशन से कह रहा है वो। इन pragmatic society 4 stages were there. In the beginning I have given the indication. In pragmatic society there was no concept, because the human being was not in position to understand or to think about it. लेकिन करोड़ों सालों के बाद व्यक्ति में सोच विकसित हुई, बायोलॉजी के आधार पर मस्तिष्क थोड़ा परिपक्व होने लगा, तो सुपर पावर को स्वीकार करने लगा। दिन निकल रहा है, रात निकल रही है, पानी है, हवा है, पृथ्वी है, उधर पूर्ति के साधन है। तो लॉ का स्वरूप दूसरा था। In the pragmatic society there was a concept of self-help. जैसे वाइल्ड एनिमल लड़ते हैं आपस में, ऐसे मनुष्य भी लड़ता था, आज भी लड़ता है। वो प्रवृत्ति अभी गई नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जो लड़ नहीं रहा होगा। अब उसके झगड़ों के अंतर्गत कोई विधि न हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन विधि लागू नहीं होती है। घर के अंदर अशांति कहाँ कहता है कानून? 504 कहता है कोई दूसरे के लिए ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करेगा जो मानसिक खींच पहुंचाता है, इंसल्ट महसूस करता है। तो ये इवोल्यूशन है लॉ का। देन थर्ड स्टेज, सुपर पावर को इग्नोर करने लगे, पॉलिटिकल पावर आने लगी, क्योंकि क्रांतियां हो रही थी और आक्रमण हो रहे थे, लोग संगठित हो गए थे। तो विधि जैसा कुछ नहीं था। जिसने राज्य को जीत लिया वो पावरफुल हो गया, जनता ने, उसने जो कुछ कह दिया जनता ने मान लिया, क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति है। लोगों को उसमें भलाई दिखाई देती थी और अपनत्व की भाव लगते थे कि देखो इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया इसने। दूसरी जगह भी जीत करके साम्राज्य में मिला लिया। वही थ्योरी पॉजिटिविज्म वालों ने देखी। तो ये सोशियोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो हुआ है इन लोगों के अनुसार, ये तो अब साइंस पर आधारित है। आगे देखिए क्या होने वाला है। अब तो
व्यक्ति का उतना कार्य नहीं है। चैट जीपीटी डाउनलोड करिए, पूरी थीसिस लिख डालिए, कितनी नकल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है, बट इन फ्यूचर आफ्टर द 20 and 50 years व्हाट विल हैपन, नोबडी नोज एट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ लॉ। तो इसलिए विशाल, ये इवैल्यूएशन ऑफ लॉ इसी रूप में नहीं है, लेकिन इस साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग जो विधि शास्त्री विचारक समाज को आधार बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो समाज है इसमें तो एम्पिरिकल स्टडी करनी पड़ती है विधि को सही तरीके से समझने के लिए। मैंने आपको पूर्व में भी उदाहरण दिए थे। तो देयरफॉर अभी एक विचार आता है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कई चीजें हैं, क्योंकि इनको पढ़ेंगे आप। मैंने सिस्टमेटिक इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि इनको आप कैसे अरेंज करेंगे सारा अध्ययन करने के बाद। तो जो फिलहाल मेरे को उत्तर मिल रहे हैं, 2 उत्तर मिले आज, क्योंकि विशाल ने तो क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने डीपीएसपी के बारे में बात की, सोशल सिक्योरिटी में बात की उसने। हालांकि जो भी है फिर भी दिमाग लगाया, दैट इज द सोशल वेलफेयर। वो सोशल 38 अगर आप देखेंगे वो अलग चीज है, सोशल सिक्योरिटी और है, वो क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है, और ये सिविल लॉ के हैं उसके अंतर्गत सब। जितना भी डीपीएसपी है वो क्रिमिनल लॉ नहीं बने हैं उसमें। जितना आप देखेंगे वो सारे के सारे विधियां लोक कल्याण के लिए बनी हैं, क्योंकि मैंडेटरी वही है उन अनुच्छेदों के अंतर्गत। उसमें क्रिमिनल की बात नहीं है। क्रिमिनल के लिए तो 20 और 22 विशेष रूप से, और कुछ सीमा तक 21 का क्षेत्र है, और 19 में सिटीजन्स को जो लिबर्टीज दी गई हैं, जिनको फ्रीडम कहा गया है, तो उनके संदर्भ में अब 1-2 लेक्चर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए। खैर फिलहाल इन्हीं को पूरा करते हैं, तो मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। अब आज मैं विराम दे रहा हूं इसमें, और थोड़ा कोरिलेट करके मुझे, इसलिए 2 दिन से मैंने बता दिया था कि आप लोग पढ़ लीजिए, ये सिनॉप्सिस है और इन लाइन पर विचार करिए, उसको लागू मैंने आज किया है। मैंने 1 by 1 आपका ये गांधीयन फिलोसॉफी लिख रहा है, आर द सोशल सिक्योरिटी। गांधीयन फिलोसॉफी कहां से आ गई भाई सोशल सिक्योरिटी? गांधी जी का विचार सामाजिक समरसता के तो थे। सोशल सिक्योरिटी को ऐसे समझिए ना, आर्टिकल 19 खोलिए, घर पे बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो उसमें लिखी है। सोशल सिक्योरिटी वो है जहां पर कि समाज की शांति को भंग किया जाता है। अब गांधी की फिलोसॉफी को आप इस संदर्भ में कैसे लेंगे? वो तो राजधर्म के अंतर्गत की बातें हैं, और समाज में तो ये सोशल सिक्योरिटी एक भय पैदा करने वाला है समाज के हित के लिए। धारा 144 सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, कोई इकट्ठा नहीं होगा वहां पर। और इसमें गांधीयन फिलोसॉफी में तो समरसता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स लाइक लेबर के राइट्स वगैरह, ये सोशल ना 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 ना, आप उसको ऐसे मत सोचिए। सोशल जस्टिस अलग है, सामाजिक सुरक्षा अलग है। सुरक्षा मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर जो पौंड का आशय था वो समाज में सबके जीवन को की सुरक्षा करना था, संपत्ति की सुरक्षा करना था। ये आपराधिक विचार के अंतर्गत विधि की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा। उसको मैं कह रहा हूं कि 19 खोलो और उसमें एक्सेप्शन के शब्दों को देखो, जहां पर सोशल ऑर्डर की बात है, पीस मेंटेन करना है सोसाइटी में, ट्रैंक्विलिटी बनाए रखना है, वो सामाजिक सुरक्षा है। ये कंसेप्ट दूसरी तरफ जा रहा है। वो लोक कल्याण और सामाजिक हित है, ये सामाजिक सुरक्षा है। सुरक्षा मीन्स सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी।
समाज को सुरक्षित रखना है, उसकी लिबर्टी पे हस्तक्षेप नहीं होना है, फ्रीडम पे हस्तक्षेप नहीं होना है, उसकी प्रॉपर्टी पे हस्तक्षेप नहीं होना है। ये वो वाला कंसेप्ट है सुरक्षा, राइट। सिक्योरिटी उसकी सुरक्षा है, उसको सुरक्षित जीवन यापन करने का के लिए उसकी कुछ फ्रीडम्स हैं। ए पर्सन वांट टू लिव इन हिज हाउस पीसफुली, तो किसी को अधिकार नहीं है कि उसके मकान में उसकी चार दीवारी के अंतर्गत वो बिगर पूछे हुए अंदर प्रवेश कर जाए। वो फिर क्राइम है, अत्याचार है। सामाजिक सुरक्षा ये थोड़ी है कि ठीक है उसने कहा सर अभी हम 10 बजे हैं रात के, कोई बात नहीं, वो आते हैं उसके, वो नहीं चाहता है कि 10 बजे मेरे पास आए, कोई मेरे से पूछे बिना मेरे पास ना आए, मैं अपनी शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। अब इसमें एक विचार और विधिशास्त्री हुआ दिमाग में आता है कि व्यक्ति एक सामाजिक परिपाटी होती है, ठीक है, शादी विवाह तो ऐसी चीजें हैं कि वो कहीं से भी कैसे भी एक व्यक्ति दो ही तो चाहिए उसमें, और कोई ज्यादा चाहिए भी नहीं। कोर्ट में 2 गवाह चाहिए, 4 लोग चाहिए, लेकिन कभी मृत्यु हो जाती है तो एक सामाजिक परिपाटी है, उसके साथ लोग जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो कानून इसकी बात नहीं करता है कहीं कि दाह संस्कार में लोग जाएं। कोई कानून नहीं बनाया आज तक। वो उदाहरण दिमाग में इसलिए आ गया कि मैंने आपसे कहा कि बिगर पूछे हुए कोई नहीं आए, अकेला जीवन यापन करना चाहता है व्यक्ति, अपनी सुरक्षा स्व सहायता के आधार पर। तो बट इन ए डेवलप्ड सोसाइटी दिस इज द ड्यूटी ऑफ लॉ, एंड फाइनली द लॉ will protect the people for their safety of individual, safety of property, safety of the family also. ये सामाजिक हितों का उल्लेख कर रहा है। ये लोकहित आपको देखने, लोकहित का अर्थ यहां पर, अब आप कहेंगे सामाजिक हो गए तो लोग क्या है, वो स्टेट इंटरेस्ट की बात करता है। तीनों में कन्फ्लिक्ट होने के लिए राज्य के द्वारा जो राज्य की संरक्षा पहले है, तो कानून ऐसा है कि इन पे प्रिवेल कर जाएगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट पे। राज्य है तो समाज है, और समाज है तो व्यक्ति है। ये पाउंड की थ्योरी है। कभी कभी ये आलोचना भी होती है उसकी, बकलैंड और डायस ने आलोचना की है इस पॉइंट पे। बट व्हाटएवर द पोस्टुलेट्स आर देयर, अभिधारणाएं सभ्य समाज में, देखिए 8-9 उसके उन पे तो मैं गया ही नहीं, पोस्टुलेट्स हैं उसके 9। कहता है कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन यापन करना चाहता है, उसको कोई डिस्टर्ब न करे। सभ्य समाज में व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि उसकी डिग्निटी को वायलेट न करे। सभ्य समाज में यह भी आकांक्षा रहती है कि व्यक्ति कभी भी उसकी भावनाओं को आघात न पहुंचाए, अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहें। सीमा मीन्स लाइक ए जेंटलमैन बिहेवियर। ये सामान्य बातें हैं, कोई बहुत नहीं है। तो लॉ को इनको संरक्षित करना है, विधि ऐसे बननी है, ये अर्थ है इसका। देयरफॉर दिस इज ए साइंटिफिक इंजीनियरिंग मेथड। एक एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसने नाम दे दिया, कहा सोशल इंजीनियरिंग है लॉ को बनाने के लिए। सब चीजों को देख लो, ढांचा देख लो, चेंजेस देख लो, इविल्स देखो, सोशल बिहेवियर देखो, यही केमिकल्स हैं उसके, फिर नींव खड़ी कर दो। ये कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया है। पढ़ना आपको है, आप अध्ययन करिए, समझिए। गहन अध्ययन होता जाएगा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे और समझ में आता जाएगा, और बिगर अध्ययन के समझ में संभव नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you so Thank much. you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।